Good morning, students. I hope you all are fine. So, I am back with another video, and as you can see in the picture, that a hunter is trying to shoot down the birds, and this chapter is part of our unit 2. In the previous video of the poem Teamwork, we learned what is the importance of teamwork, and similarly, in this chapter also, we will read a story that how teamwork and listening to our elders help us to overcome problems in life. So before we start the story, I have a question for you. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Okay. You often get instructions by your teachers and parents that there are certain things which you should do on time. Okay, you should be punctual, like get up in the morning, doing the homework on time, pack your school bag, etc. etc. These are some of the things that you often get heard by your parents and teachers that you are supposed to do on a particular time and follow a fixed routine. Okay, following a fixed routine helps you to be a more disciplined person in your life and achieve whatever goals you have set. Okay, discipline and punctuality are two very important, I say, qualities of a successful person. Okay, now let's read the story. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of these geese was a wise old bird. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. एक जंगल में एक काफी बड़ा पेड़ था और उसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ थी, ब्रांचेस थी जो फैली हुई थी मजबूत आर्म्स की तरह। ठीक है, तो उस पर एक गीज का झुंड रहता था वहां पर, और उन्हीं में से एक बूढ़ा गीज जो था वो उन सब में से ज़्यादा समझदार था। ठीक है, तो उसने एक क्रीपर को नोटिस किया पेड़ के नीचे, एट द फुट ऑफ द ट्री, जहाँ से पेड़ ज़मीन से स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे उसने क्रीपर को देखा। क्रीपर मतलब ऐसे प्लांट्स जो किसी चीज़ के सहारे ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे मनी प्लांट होता है। ठीक है, वो एक स्टिक के अराउंड हम उसको प्लांट करते हैं और वो फिर उसके सहारे ही ग्रो करता है ऊपर तक। तो उसने उस क्रीपर को देखा कि ये पेड़ के सहारे ऊपर बढ़ने वाला है, ग्रो करेगा ये, और इस बारे में उसने बाकी बर्ड से बात करी। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द geese in surprise. It is so small, what harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. उसने बाकी गीस को समझाने की कोशिश करी कि हम इसको अभी ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी सारे जो गीस थे वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये तो एक छोटा सा क्रीपर है, एक छोटा सा पेड़ है, ये हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो जो बूढ़ा बर्ड था, वाइज बर्ड था उनमें से, उसने उसे उन्हें बाकी सबको समझाया कि इस क्रीपर की मदद से कोई भी पेड़ के ऊपर तक चढ़ के आ सकता है, और वो कोई हंटर भी हो सकता है, हमें वो मार भी सकता है। वेल, देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड।
The creeper is very small, it would be a pity to destroy it now. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. बाकी सभी बर्ड्स का कहना था कि कोई जल्दी नहीं है इसको काटने की, अभी ये बहुत छोटा है, इतने छोटे पेड़ को काटना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो जो वाइज बर्ड था उसने कहा कि अभी ये छोटा है, टेंडर यानी कि सॉफ्ट है, अभी इसको काटना आसान होगा, लेकिन बाद में जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा और इसे हम काट नहीं पाएंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब नेल्स हमारे छोटे होते हैं, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक हम उसको इजीली काट सकते हैं, लेकिन जब हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं कि नहीं बाद में काट लेंगे, तो वो जो नाखून होता है वो हमारी स्किन के अंदर तक चला जाता है, बाद में फिर वो बहुत प्रॉब्लम करता है, डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है। तो जब प्रॉब्लम छोटी होती है तभी उसको हमें डील कर लेना चाहिए। We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. ठीक है, देख लेंगे कह के बर्ड्स ने उस बात को टाल दिया और उसे काटने से मना कर दिया। They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. उन सभी ने उस वाइज ओल्ड बर्ड की जो एडवाइस थी, जो सलाह थी, उसको नहीं माना और धीरे धीरे वो क्रीपर जो था वो ऊपर की तरफ पेड़ के बढ़ने लगा। Stronger and stronger it became until it was as strong as thick rope. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. अब वही हो रहा था जो वाइज बर्ड ने उनको बताया था कि इसको अभी नहीं काटेंगे तो क्या हो जाएगा आने वाले टाइम में, वही प्रॉब्लम उनके सामने आने वाली थी। वो जो क्रीपर था वो एक मजबूत रस्सी की तरह हो गया था, बहुत स्ट्रांग हो चुका था और पेड़ के ऊपर तक वो फैल चुका था। एक दिन सुबह जब वो लोग बाहर गए थे खाने की तलाश में, तो पीछे से एक हंटर जंगल में आता है। So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. उसने उस पेड़ को देखा और अपने आप से कहा कि यही वो जगह है जहाँ वो लोग रहते हैं, मैं शाम को आऊँगा तब उनको पकड़ूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. अब वो जो क्रीपर था एग्जैक्टली वही काम आया जो वाइज ओल्ड बर्ड ने बताया था कि इसकी मदद से कोई भी हंटर ऊपर तक आ सकता है। तो वो जो हंटर था उस क्रीपर की मदद से ऊपर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. ऊपर चढ़ के उसने जाल बिछा दिया पेड़ पे और वहां से चला गया। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree. They were trapped. They struggled hard to get out but could not. शाम को जब सभी गीज वापस आए तो उन्होंने नेट पे ध्यान नहीं दिया और जैसे ही वो पेड़ पर आके बैठे वो उस जाल में फंस गए। ठीक है, अब वो उससे निकलने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। अब वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे कि हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं, अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसने कहा कि अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि इसे काट देते हैं, लेकिन तब तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब देखो क्या हो गया, हंटर सुबह आएगा और हम सबको मार देगा। We were foolish, wept the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. अब बाकी बर्ड्स को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलत किया और कहा कि हमें अपनी गलती का एहसास है, हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी बात नहीं मानी, प्लीज़ हमें अभी बताओ क्या करें।
Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take away. उन्हों जो वाइज ओल्ड बर्ड था, उन्होंने उसे बाकी बर्ड्स को सलाह दी कि जब हंटर आएगा तो हमें मरने की एक्टिंग करनी है, ऐसा दिखाना है कि हम सब मर चुके हैं। तो जो हंटर है उसे मरे हुए बर्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमें ऊपर से नीचे फेंक देगा और आराम से नीचे उतरेगा, सभी को उठाएगा और ले जाएगा। अगर जिंदा रहेंगे तो उसको नीचे उतारने में प्रॉब्लम होगी एक एक करके, वो सोचेगा कि मर गए हैं, तो ऊपर से ही वो नीचे फेंकेगा हमें, ताकि वो नीचे से एक साथ कलेक्ट करके जा सके। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly. जैसे ही हम में से लास्ट बर्ड नीचे फेंका जाएगा, उसके बाद हम तुरंत खड़े होंगे और यहाँ से उड़ जाएंगे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. सुबह हंटर आता है और पेड़ के ऊपर चढ़कर देखता है नेट में। They are all dead, he muttered to himself. उसने अपने आप से कहा कि ये सब तो मर गए हैं। He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. जैसे ही आखिरी बर्ड भी नीचे फेंका गया, तब तक वो लोग लेटे रहे, और जैसे ही लास्ट बर्ड को नीचे फेंका गया, वो सब एक साथ खड़े हो गए, अपने विंग्स को खोला, अपने पंखों को फैलाया और वहां से उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। जो शिकारी था वो एकदम सरप्राइज हो गया इस चीज को देखकर, और पेड़ के ऊपर से उन सभी गीस को उड़ते हुए देखता रहा। ये जो कहानी है ये ली गई है शिव कुमार जी की स्टोरी से, अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र अ वाइज ओल्ड बर्ड। पंचतंत्र की जो कहानी है अ वाइज ओल्ड बर्ड, उसी में से इस स्टोरी को लिया गया है। तो इस स्टोरी में हमें बताया गया कि कैसे एक तो हम टीम वर्क जब करेंगे, एक साथ हम मिलजुल कर कोई काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो वो हम सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं। और अपने से बड़ों की बात हमें ज़रूर सुननी चाहिए। वो अपने एक्सपीरियंस से वो बातें हमको बताते हैं, लाइफ में उन्होंने वो चीज़ फेस करी है, तब वो हमें बता रहे हैं। तो हमें अपनों से बड़ों की बातों को मानना चाहिए, सुनना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। So now look at the new words of the chapter. Geese, plural for goose, large web-footed bird. Creeper, plant that needs support to grow, usually along a wall or a tree. Winding, go in circular spiral course. Muttered, spoken in a low tone. Flapped, move wings up and down. So these were some of the new words from the chapter. I hope you liked the video. Thank you for watching this video.